I will cover next topic, that is physical and chemical change. Okay, physical and chemical changes. So what are physical changes? In first chapter you studied about the physical properties. So what physical properties a matter have? Okay. So physical properties like state, color, odor, density, melting point, boiling point, solubility, all these are physical properties. Okay. So in physical change, okay. So the important thing is that in physical change there is no any change in the composition of matter. उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगा, वो जिन भी एटम से मिलके कंस्ट्रक्ट हुआ है वो उसके कभी चेंज नहीं होंगे. ओके, सो फिजिकल चेंज में फिर क्या चेंज होगा? इन फिजिकल चेंज देयर स्टेट में बी चेंज्ड. मीन्स यदि वो सॉलिड स्टेट में हो सकता है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, हो सकता है वो गैस में कन्वर्ट हो जाए. आपने सब्लिमेशन में देखा है, सब्लिमेशन में क्या होता है? सब्सटेंस सॉलिड से सीधे गैसियस स्टेट में डायरेक्टली कन्वर्ट होता है. इन मेल्टिंग, इन केस ऑफ मेल्टिंग, सो वेयर अ सॉलिड converted into liquid, only state will be changed. Okay, suppose ice, when we provide heat or when we keep ice cube at atmospheric condition, so it becomes water. Ice having H2O formula, molecular formula of ice is H2O and its symbol is also H2O. So is there any change? No. Two hydrogen combined with one oxygen and form water molecule. Here is also two hydrogen combined with one oxygen, so they form water molecule. Okay, H2O. तो यहाँ तो कुछ भी ऐसा चेंज नहीं हुआ. इवन वाटर से आप वेपर बना रहे हो, वेपर इज ऑल्सो वाटर. वेपर जो है वो क्या है? वो भी तो H2O है. इट मीन्स दिस इज सॉलिड स्टेट, it becomes liquid state and finally gaseous state. gaseous state हो रहा है, तो बस स्टेट ही तो चेंज हो रही है. ठीक है, तो फिजिकल चेंज में क्या होता है? स्टेट बस चेंज हो रही है. हो सकता है कई बार हम कुछ इस तरह से कंफ्यूज भी हो सकते हैं, जैसे आपने सुना होगा मेल्टिंग ऑफ वैक्स एंड बर्निंग ऑफ वैक्स. इन दोनों में बहुत डिफरेंस है. ओके, यदि हम वैक्स को मेल्ट कर रहे हैं तो उसकी सिर्फ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट में पहुंचना हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म हो रहा है. तो फिजिकल चेंज में देयर इज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. The substance or matter remains unchanged chemically. But in chemical change, maybe state will be changed, but the chemical composition of the substance after chemical change must be changed. होगा ही होगा, उसका composition change हो जाएगा. Means we will get new substance after the chemical change. Okay, when we burn carbon in oxygen, this is combustion reaction. Okay, combustion, कार्बन को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम उसे हीट कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, so we will get CO2. In this case carbon was in solid state, this is gaseous state and we will get gas as CO2. So state may be changed. इस सब्सटेंस को हमने बर्न किया तो उसकी स्टेट चेंज हो गई, बट कंपोजिशन भी तो चेंज हो गया. ये सिंगल था, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से बना हुआ था. अब इसमें दो टाइप के पार्टिकल्स हो गए, इसमें दो एलिमेंट्स हो गए. ओके, लेटर वी विल डिस्कस अबाउट द कंपाउंड्स. दिस इज कंपाउंड एंड दिस इज एलिमेंट. क्लियर? सो यहाँ पर क्या हो रहा है? इसकी स्टेट ही चेंज हो गई है.
कार्बन जो है वो जल रहा है, इनफ्लेमेबल है, बट CO2 फायर को एक्सटिंग्विश करती है, उसे बुझा देती है आग को। तो केमिकल चेंज में प्रॉपर्टीज टोटली चेंज हो जाती हैं, बट फिजिकल चेंज में इनकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होंगी। क्लियर है? क्योंकि सब्सटेंस ही चेंज नहीं हो रहा है। सो नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो हैविंग chemical change, difference between the physical and chemical change along with some examples. Okay. Next topic is difference. This is difference between physical and chemical change. Difference between physical and chemical change. Okay, so on the basis of some properties we will discuss both the changes. So properties are, first state. State means physical state. Okay, so at room temperature, we have seen only 3 states: solid, liquid and gaseous state. Okay, 2 more states are also present, that is plasma state and supercooled state. But room temperature, we are having only 3 states: solid, liquid and gas. Okay, so state, or we can say form. Okay, so फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज में फर्स्ट स्टेट कैन बी चेंज्ड. State can be changed, like okay, examples we will discuss after. Can be state can be changed. A simple example is when we melt ice, it becomes water. But both the substance having same molecular composition or same formula. So only solid is converted into liquid state. Okay. Here in chemical change, state can also be changed. Can be changed. Basically, this is not a difference point, but later on I will discuss on that. Second point is composition. Okay, composition does not change. And here in chemical change, composition is totally changed. Composition of substance totally changed. Okay. Third is bonding. All the substance formed by the atoms, and these atoms are bonded together by some chemical bonds. Okay, so it means हर मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या बॉन्ड से बंधे होते हैं. ठीक है. इन फिजिकल चेंज, bonds present inside the molecule do not break. Bonds present inside the molecule do not break. But in case of chemical change, bonds of molecules broken down.
bonds of molecules broken down. These are the basic difference of physical and chemical change. I am going to revise this again. State or form. In physical change, state can be changed. In chemical change, state can be changed. Okay. And composition does not change during physical change, and in chemical change, composition is totally changed after the change. Okay. And bonds present inside the molecule does not break, and bonds of molecules broke down. Okay. So next examples of physical change. First, melting of ice or wax. Second, wetting and drying. Example is wetting or drying of clothes. Okay. Third one is cutting of paper or wood. Melting of ice, I explained. Wetting or drying of cloth. When we put a cloth in water and after few hours it will or after some minute it will dry. Okay. So कपड़ा गीला हुआ फिर सूखा, उससे कपड़े का कंपोजिशन नहीं चेंज होगा. ओके. एंड कटिंग ऑफ पेपर और वुड. Suppose we cut this duster in several pieces. So all the piece having same composition of wood. या एक शीट लेके आप उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दीजिए. हर एक टुकड़े में पेपर के सारे मॉलिक्यूल्स जो के त्यों मिलेंगे. Okay, so this is the examples of physical change. Now, the example of chemical change. The example of chemical change. First, digestion of food. Digestion of food. Second, production and evolution of CO2 gas, carbon dioxide gas, production and evolution of carbon dioxide gas in respiration. Okay, production of and evolution of CO2 gas in respiration. Third, conversion of milk into कर्ड. दही से दूध वापस बनाओगे? नेवर. सो कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड. Second example is also to show evolution of gas. Okay. So for this I am taking acid. Any acid you can take HCl or H2SO4. Okay. This is hydrochloric acid. This is colorless and there is no bubble of any gas. When we mix zinc metal in it, okay, I will put zinc metal in it. See, this is the evolution of gas. This is hydrogen gas and keep it far from flame. Okay. So when we melt wax, so this is physical change. Why? Because on melting wax, its state is converted into liquid state. Originally, at room temperature, wax exists in solid state,
and when we melt it or melt ice, it becomes liquid form. Okay, so this is physical change. The composition of wax or ice does not change. Okay, in case of burning of candle, okay, so wax is hydrocarbon or carbon compound. When we burn this, so some of the molecules converted into carbon dioxide and water vapor. Okay, so in open space, carbon dioxide will escape out. So conversion of wax into carbon dioxide and water vapor is called chemical change. In same here, that is LPG gas. When we burn LPG gas, so it produces light energy, heat energy, carbon dioxide and water vapor. Okay, so can you form again this light energy and heat energy, convert back to LPG gas? We can't. Okay, easily we can't. So this is the chemical change. Okay. Next topic is what are the types of pure substances? Okay. What are the types of pure substances? What are the types of pure substances? So pure substances are classified in two categories. Okay, what is the ground to classify them? On the basis of their chemical composition. Okay, chemical composition के base पे pure substances are classified as elements and compounds. Okay, elements and compounds. Clear? Elements are further classified as metals, non-metals and metalloids. Clear? Elements are further classified as metals, metalloids and non-metals. And compounds are the compounds. Okay. So we will discuss about the elements. What are elements? Okay. Elements. What are elements? The elements are the basic unit of or basic form of any substance or any matter, which cannot be further divided into simpler or which cannot be converted into simpler substances or simpler form. Okay, it means elements are the simplest form of any matter. हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू या केमिकल चेंज के थ्रू हम उसे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं. वो सबसे छोटी यूनिट किसी भी मैटर की एलिमेंट होती है. ओके, एलिमेंट are the basic form of any matter or substance which cannot be further broken down into simpler form. Okay.
Example, metals, non-metals and metalloids. Okay, metals, non-metals and metalloid. अब metals के example आपको पता है, copper, aluminium, iron, gold, silver. Non-metals, oxygen, hydrogen, nitrogen, chlorine, ये, and metalloids, arsenic वगैरह metalloids. इसे हम डिटेल में भी पढ़ेंगे. ओके, सो मेटल क्या है, एक तो एलिमेंट क्या है, एक तो वो प्योर फॉर्म है सब्सटेंस का. ठीक है, सब्सटेंस के प्योर फॉर्म में एलिमेंट एक हम देख रहे हैं. एलिमेंट को हमने ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन वी कैन क्लासिफाई इनटू 3 क्लास, मेटल, नॉन मेटल एंड metalloids. Okay, so what are elements? Elements is the basic structure, basic unit of any matter or substance which cannot be further divided into simpler form. Okay. Now, types of elements. Types of elements. जितने भी एलिमेंट अभी तक डिस्कवर हुए उनमें से मैक्सिमम है मेटल्स. उनमें से क्या है, मेटल्स मैक्सिमम है. कुछ थोड़े से ही है जो नॉन मेटल है और मेटलॉइड तो बहुत ही कम है. सो वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स में. फर्स्ट इज मेटल्स. ओके, सो व्हाट प्रॉपर्टीज दे हैव. सो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. Properties of metals. Okay, properties of metals. First, they have specific luster. Okay, they have luster. Luster मतलब शाइन. उनकी अपनी एक शाइन, उनकी अपनी एक शाइनिंग होती है. ओके, सो ऑल द मेटल्स हैव सम स्पेसिफिक शाइनिंग. आप देखेंगे गोल्ड की अलग है, सिल्वर की शाइनिंग अलग है. ठीक है, तो गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, जिंक, इन आयरन, इन सब की अपनी एक शाइनिंग होती है. तो उसे अपन क्या बोलते हैं, लस्टर. इट मीन्स मेटल्स आर लस्टरस. ओके, सेकेंड, दे आर सोनोरस. Sonorous means when we hit a piece of metal with the same metal piece or with the hammer, so they will, or any solid surface or solid object, so they will produce a specific sound. आप ट्राई कर सकते हैं घर में, एल्यूमिनियम की रॉड लेके, कॉपर की रॉड लेके, आयरन की रॉड लेके, आप उसे किसी या तो दो रॉड लेके आपस में सेम मेटल की हिट करिए. ठीक है, या कहीं एक सॉलिड जगह पर आप उसे ठोक कर देखिएगा तो आप देखेंगे उसमें से एक साउंड प्रोड्यूस होता है. सो ऑल मेटल्स आर सोनोरस. ओके, थर्ड, फिजिकल स्टेट. ओके, दे आर जनरली नॉक्टर्नल. थर्ड, एक्सेप्ट मरकरी. मरकरी का सिंबल होता है Hg. एक्सेप्ट मरकरी, गैलियम, एक्सेप्ट मरकरी, गैलियम. ये गैलियम के लिए खास बात है, इन समर हम सिर्फ समर की बात करेंगे गैलियम के लिए. मरकरी, एक्सेप्ट मरकरी, ऑल द मेटल्स आर एग्जिस्ट in solid state. I have already given notes of this chapter. Okay, so you will go through the notes. So please go through the notes and prepare all the topics nicely, properly. जो भी आपको समझ में आए बस तैयार करना है. ठीक है, all the metals are exist in solid state. Fourth, they are good conductor of heat and electricity.
सारे के सारे मेटल्स जो है वो अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, तभी तो यूटेंसिल्स वगैरह मेटल के बनते हैं या मेटल के कॉम्बिनेशन से जो अलॉय बनते हैं उनसे बनते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी आपने देखो कि जितने भी वायर बनते हैं या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उन सब में क्या होता है, मेटल यूज होता है, ठीक है। वायर के ऊपर की कवर की बात नहीं कर रही हूँ, ये देखिए ये कॉपर वायर है, तो कॉपर क्या मेटल है ना, ये कॉपर मेटल है, तो कॉपर तो मेटल होने के कारण ये कंडक्शन कराता है इलेक्ट्रिसिटी का। ये तो हम इसलिए कि हमें शॉक ना लगे या शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, ये क्योंकि नेट वायर जो रहेगा वो अच्छे कंडक्टर है तो हमें करंट भी लग सकता है, इसलिए हम प्रोटेक्शन के लिए इस रबर की कवरिंग या प्लास्टिक की कवरिंग इस पे होती है, ओके। फिफ्थ, दे हैव स्पेसिफिक कलर, इनका अपना एक स्पेसिफिक कलर होता है, जैसे सिल्वर का सिल्वरी कलर ग्रेइश कलर होता है, ठीक है, ग्रेइश वाइट। कॉपर का आपने देखा होगा ब्राउन कलर होता है, ठीक है। तो इनका गोल्ड का आपको पता ही है येलो रहता है, इसलिए तो अपन गोल्डन कलर बोलते हैं येलो को, ठीक है। तो ये दे हैव स्पेसिफिक कलर। सिक्स्थ, दे हैव डक्टिलिटी। Ductility. What does it mean? Ductility means when we want to make a wire, so metals can be drawn into wire. उनको हम खींच के वायर बना सकते हैं और बनते हैं मेटल्स के वायर, ठीक है। तो जो वायर बनते हैं इस नेचर को क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी, ओके। 7, दे आर मेलेबल। मेलेबल क्या होता है, मेलेबिलिटी क्या है। सपोज आपने देखा होगा आयरन की शीट मिलती है, एल्यूमिनियम की शीट मिलती है, एल्यूमिनियम की फॉइल मिलती है, गोल्ड की फॉइल मिलती है। फॉइल मतलब पतली सी थिन शीट, ठीक है। तो आप एल्यूमिनियम की शीट देख पा रहे हो, आयरन की शीट देख पा रहे हो, कॉपर की शीट देख पा रहे हो। शीट क्या आपने देखा, प्लेट है, सिल्वर की प्लेट आपने देखी है। तो ये सब क्या है, क्योंकि ये मेलिबिलिटी रखते हैं, तो मेटल्स आर मेलिबल। मेलिबल मीन्स व्हेन वी हैमर एनी पीस ऑफ मेटल सो इट विल कन्वर्टेड इनटू शीट। हम उसको हैमरिंग कर रहे हैं, हैमर से उसकी पिटाई लगा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वो शीट में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, मेलिबिलिटी, ओके। जनरली they have high melting point and boiling point. इनके melting point और boiling point generally high होते हैं, ठीक है। तो all these properties metals have, okay. Example of metals: sodium, gold, aluminium, iron, silver, copper, etc. Okay, ये examples of metals. Next is non-metals. Non-metals. Okay, so non-metals have some specific property, so we will differentiate from the metals also. So what properties they have? Properties of non-metals. First, they are not sonorous. मीन्स मेटल नॉन मेटल्स को आप हिट करेंगे तो उससे कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। आप कार्बन को हिट करके देख लीजिए, सल्फर को हिट के पीस को हिट कर लीजिए, फास्फोरस के पीस को लेके हिट कर लीजिए, इसमें कोई साउंड नहीं होता। क्यों? क्योंकि सोनोरस नहीं है। सेकेंड, ऑल दे
exist in all the three physical states. ये तीनों फिजिकल स्टेट में मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल सॉलिड में सल्फर, phosphorus, carbon, etc. Okay, and liquid state, only one non-metal which exists in liquid state, that is bromine. Okay, याद रखेंगे सिर्फ और सिर्फ ब्रोमीन नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है. एंड गैसियस स्टेट में सिंपल ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, nitrogen. Okay, so all these are the non-metals and exist in gaseous state. Clear? Next point is third. They have low melting point and boiling point. इनका अपना melting point और boiling point लो होता है जनरली. ठीक है, एक एक्सेप्शनल केस है डायमंड. कार्बन का एक फॉर्म होता है डायमंड. ठीक है, वो भी प्योर सब्सटेंस है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, वो एक्सेप्शनल केस है. ठीक है, फोर्थ पॉइंट दे डू नॉट हैव डक्टिलिटी एंड मेलिबिलिटी. ओके, दे डू नॉट हैव ductility and malleability. ओके, मतलब इनके हम वायर भी नहीं खींच सकते और इनके हम शीट भी नहीं बना सकते. ओके, एक्सेप्ट ग्रेफाइट. ये क्या है ग्रेफाइट? ये भी कार्बन का एक फॉर्म है. ठीक है, ये भी कार्बन का एक फॉर्म है. A form of carbon. Okay, C for carbon. Except graphite, they are bad conductor of or insulator. Bad conductor of electricity. Okay. Sixth, they are bad conductor of heat also. Bad conductor of heat. Okay. Next, except iodine, they are non-lustrous. इनमें लश्यर नहीं होती है, शाइनिंग नहीं होती है. सिर्फ आयोडीन को यदि छोड़ दे तो बाकी किसी में भी शाइनिंग नहीं होती है. तो ऑल दीज प्रॉपर्टीज आर ऑफ non-metals. Okay, and what example I have already written in the physical state column. Okay, metalloids. So what metalloids are? Metal which have property similar to the metal as well as non-metals. ये metal और non-metal की कुछ properties दोनों की दिखाते हैं, इसलिए इन्हें हम मेटलॉइड कहते हैं. मेटलॉइड का दूसरा नाम सेमी मेटल्स भी होता है. सेमी मतलब आधा. ओके, सो मेटलॉइड्स आर हैविंग द प्रॉपर्टीज सिमिलर, सम प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द मेटल एज वेल एज नॉन मेटल. तो दीज आर द मेटलॉइड्स. द नेक्स्ट प्योर सब्सटेंस इज कंपाउंड्स. ओके,
Compounds. What are compounds? The compounds are the substance which composed by two or more elements when combined in fixed ratio. They must be combined in chemically. Okay, they must combine chemically. So the product we will get is a compound. So compound. Compounds are the substances which will form when two or more elements chemically combine in fixed ratio or proportion. In fixed ratio or proportion. Okay. Focus on these two words. ओके, केमिकली कंबाइन होना है और फिक्स रेशो में होना है. ठीक है, तो कंपाउंड जब भी कभी दो या मोर देन टू एलिमेंट्स जब केमिकली कंबाइन होते हैं फिक्स प्रोपोर्शन में तो कंपाउंड फॉर्म होता है. ओके, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू मेक वाटर मॉलिक्यूल, सो इट इज रिक्वायर्ड दैट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ओके कंबाइन विथ 2:1 एटॉमिकली. ओके, मतलब इनका जो रेशियो 2:1 रहेगा. एटॉमिकली मतलब एटम के अकॉर्डिंगली. क्लियर है? अभी आपने एटॉमिक मास वगैरह नहीं पढ़ा है, इसलिए यहाँ पर हम फिक्स प्रोपोर्शन है रेशियो लिख रहे, बाय मास नहीं बता रहे आपको, ये नेक्स्ट चैप्टर में आएगा. क्लियर है? तो यहाँ पर क्या है 2:1 एटॉमिकली. ठीक है, सपोज formation of carbon dioxide, we can see the composition of 1:2. कार्बन 1 रेशियो में है एटॉमिकली एंड ऑक्सीजन इन ट्वाइस ऑफ द कार्बन. क्लियर है? सो ये तो आपने बना लिया इससे, लेकिन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी है. तो जो प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स मेन क्या है? जो भी कंपाउंड बन रहा है, जो भी सब्सटेंस न्यू बन रहा है, वो केमिकली चेंज हो, केमिकल रिएक्शन हो रही है एलिमेंट्स की, तब वो बन रहा है ना. मतलब कंपाउंड का फॉर्मेशन क्या होता है? केमिकल चेंज. कंपाउंड का फॉर्मेशन जो है वो एक तरह से केमिकल चेंज है. ओके, सो प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स. शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंपाउंड इज दिस. ओके, फर्स्ट they are always formed after chemical change. Second, the constituent of compound having the constituents of compounds loses their properties. The constituents of compound loses their property when they will be a part of कंपाउंड. ओके, उनकी अपनी प्रॉपर्टी अब नहीं रह जाएगी क्योंकि वो केमिकली कंबाइन हो चुके हैं, वहां केमिकल चेंज हो चुका है, मतलब वहां नया सब्सटेंस बन चुका है. फॉर एग्जांपल H2 plus O2 they will combine to form H2O. Okay, in this concern hydrogen is combustible and oxygen is supporter for the combustion, but water is extinguisher of fire.
ये खुद चलता है, ये जलाने के लिए सपोर्ट करता है, बर्निंग के लिए सपोर्ट करता है, और इन दोनों के कंबाइन से, केमिकली कंबाइन होने से जो वाटर मॉलिक्यूल बना है, ये वाटर मॉलिक्यूल तो फायर को एक्सटिंग्विश करता है, उसे आग को बुझा देता है. ओके, सो दिस इज द एक्सटिंग्विशर. सो इसकी प्रॉपर्टी तो टोटली, ये क्या है, ये एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, बट दिस इज कंपाउंड. सेम फॉर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में एक एक्टिविटी आप देखेंगे, उस एक्टिविटी में आप आयरन और सल्फर का एक्टिविटी जो एनसीईआरटी में दी हुई है उसे आप देख लेते हैं. हमारे पास फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप. ओके, हमने दोनों ही ग्रुप को आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर दिया है. ओके, ये आपने देखा होगा ग्रे कलर का होगा और ये येलो कलर का पाउडर होता है. ओके, फॉर बोथ द ग्रुप्स वी विल प्रोवाइड दिस. ठीक है, हमने चाइना डिश में दोनों को दे दिया. ठीक है, अब यहां दिस ग्रुप provides heat to this mixture. Okay, and after some time it becomes black residue. ये black residue बन जाएगा और इसको हम हीट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो ये ग्रे और येलो का मिक्सचर हो रहा है. तो ये क्या है, ये मिक्सचर है, क्योंकि यहाँ केमिकल कंबाइन नहीं हुआ है. आपने मिक्सचर पढ़ा हुआ है, मिक्सचर में सब्सटेंसेस जो होते हैं वो केमिकली कंबाइन नहीं होते हैं, वो सिर्फ मिक्स रहते हैं. ठीक है, इनका कंपोजिशन थ्रू आउट सेम नहीं मिलेगा. आप देखेंगे कहीं पर आपको उस मिक्सचर में कहीं येलो कलर ज्यादा दिखेगा, कहीं ग्रे कलर के पार्टिकल्स ज्यादा दिखेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कलर का आपको रेसिड्यू मिलेगा और थ्रू आउट द सब बल्क, पूरे बल्क में एक सा ही दिखेगा. ठीक, फिर आप एक मैग्नेट को लाइए, मैग्नेट को इसके ऊपर से मूव कराइए, आप तो क्या होगा, आप देखेंगे इसमें से कुछ आयरन फिलिंग अलग हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगे. मतलब मिक्सचर के कंपोनेंट को हम सेपरेट कर पा रहे हैं. क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि आयरन रिटेन देयर प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अभी भी रिटेन है. बट जब आपने इसके ऊपर से मैग्नेट को पास किया तो कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं मिला. क्यों, क्योंकि आयरन मैग्नेटिक था लेकिन आयरन सल्फाइड नहीं था मैग्नेटिक, तो वो तो अटैच ही नहीं हुआ. इसका मतलब इन दोनों ने केमिकली कंबाइन किया तो उनका एक नया सब्सटेंस बना जिसे अपन कंपाउंड कह रहे हैं. एंड कंपाउंड्स हैविंग देयर ओन प्रॉपर्टीज मींस द कॉन्स्टिट्यूएंट्स लूजेस देयर प्रॉपर्टी. क्लियर है? नेक्स्ट, फिर हम इस मिक्सचर को एसिड से रिएक्शन करा रहे हैं, सपोज HCl और H2SO4. ओके, सो Fe+S का मिक्सचर है, हमने इसे एसिड से ट्रीट किया. ओके, एसिड से. यहाँ पर FeS, अब हम यहाँ Fe+S लिख रहे हैं, यहाँ FeS लिख रहे हैं क्योंकि अब एक नया बंदा बन गया है. ठीक है, when FeS react with HCl, so it will produce H2S gas. ओके, इसकी अपनी एक रॉटन एग जैसे स्मेल आती है और यहाँ पर जो गैस रिलीज होगी वो हाइड्रोजन रिलीज होगी. क्यों, क्योंकि सिर्फ आयरन इससे रिएक्शन कर रहा है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहा है. ये हाइड्रोजन गैस क्या है, ओडरलेस होगी, कलरलेस होगी और कंबस्टिबल होगी. ठीक है, लेकिन इसकी स्मेल तो अलग ही है. तो दोनों ग्रुप के ऑब्जर्वेशन अलग अलग आ रहा है. इसका मतलब हम ये निकालेंगे कि जो सेकेंड ग्रुप है उसने इसको गर्म किया, हीट प्रोवाइड की, तो इन दोनों एलिमेंट ने केमिकली कंबाइन किए, नया प्रोडक्ट बना जिससे हम क्या करें, कंपाउंड्स. और कंपाउंड्स की अपनी प्रॉपर्टीज है, यहाँ पर इनकी प्रॉपर्टीज रिटेन थी. ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, यहाँ पर आयरन सल्फाइड होता तो वो गैस मिलती. इसका मतलब आयरन जब भी कभी एसिड से रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा, तो आयरन यहाँ मिक्सचर में ज्यों का त्यों बचा है, इसलिए उसने एसिड से रिएक्शन किया एंड इट विल प्रोवाइड हाइड्रोजन गैस. ओके, so this chapter is also finished, and prepare thoroughly for the test and complete your notes in notebook. I will check it.